to this luminous gathering. I, Indrani Datta, And I, Kanika Naran, will be your hosts for the event today. We extend a gracious welcome to our chief guest for the occasion, His Holiness Pujya Swami Chidanand Saraswati Ji. Swamiji is the president of Parmarth Niketan Ashram in Rishikesh. He is a global spiritual leader known for his humanitarian work and environmental initiatives. Our pranam to you, Swamiji. We extend a cordial welcome to our guest of honor, Regional Officer CBSE, Mr. Anil Kumar Jain. We also welcome the esteemed members of the management of the MPVM Samiti, the awardees of the LML Awards, and other dignitaries present here. My warm welcome to the principals of the Patanjali fraternity and other schools, along with all the teachers gathered here. Today we celebrate not just a profession, but a passion, the art of shaping lives, of igniting young minds, and of turning curiosity into wisdom. As we begin the second half of this felicitation ceremony, we invite you to a journey through time. A journey that celebrates not just one evening, but years of inspiration and legacy. Every tradition has a story, and Lokmani Lal Awards is no exception. What began as a humble tribute to our gurus has grown year after year into a grand celebration of excellence, learning, and love. Let's take a moment to pause, rewind, and relive the applause, the moments of pride and emotion through a nostalgic journey of the past editions of our Lokmani Lal Awards.
Beautiful, wasn't it? Each face, each smile, each moment spoke 1,000 emotions: gratitude, pride, and the pure joy of being recognized and appreciated. So, ladies and gentlemen, with hearts full of nostalgia and joy renewed, let us move ahead to the next glorious chapter of this evening's celebration, the Lokmani Lal Awards for Excellence in Education 2025. संस्कृति की संहिता था वह जीवन, आदर्श का प्रतिमान था वह जीवन। यूं तो ये लोक है आना जाना, लोक में मणिरूप था वह जीवन। संस्कृति की साधना की साध्य थी, सत्य श्रद्धा संवलित आराध्य थी। कर्म पथ के हे पथिक पूतात्मना, अर्चना थी लोकहित आराधना। इस विद्या मंदिर के आराध्य तुम्ही आराधक तुम, कण कण तृण तृण में रमे राम के साधक तुम। हे अमर देव, हम यही प्रार्थना करते हैं, तब स्वप्न बने साकार कामना करते हैं, तब स्वप्न बने साकार कामना करते हैं। श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी की इस कविता के साथ मेरा त्याग, समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति एवं हमारे प्रेरणा स्रोत महामना स्वर्गीय श्री लोकमणि लाल जी को शत शत नमन एवं प्रणाम। श्री लोकमणि लाल जी का व्यक्तित्व दिवस, माह एवं वर्षों की परिधि से बाहर उस अनंत की ओर संकेत करता है जहां मानव विष्टि से समिष्टि की ओर बढ़कर अनंत आकाश को अपने आगोश में समेट लेता है। That was indeed a heartfelt tribute, a beautiful poem that painted a vivid picture of our founder president, Sri Lokmani Lal Ji, whose vision continues to guide every step we take at the Maharshi Patanjali group of schools. His ideals, his passion for education and his belief in the power of teachers to shape young minds remain the very soul of our institution. And it is in recognition of that vision and this lifelong commitment to honoring teachers that our school's most prestigious honor, the Lokmani Lal Awards, bears his name. परम शक्ति में ज्ञान रूप तुम, हम अबोध अज्ञानी, तमसो मां ज्योतिर्मय प्रभु, हम जीव जगत के प्राणी। पूज्य पिता के स्वप्न और संकल्प बनो हैं यदुवर, ज्ञान यज्ञ के महासत्र को पूर्ण करो हे प्रभुवर, ज्ञान यज्ञ के महासत्र को पूर्ण करो हे प्रभुवर। ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक दीप को प्रज्वलित करने के लिए मैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथिगण को श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करती हूँ। Ah
Thank you, sir, for that wonderful rendition. In every sacred gathering, there comes a moment where words must rise to match the depth of our gratitude. And what could be more special than extending words of welcome to one whose illuminating presence radiates peace and compassion? Our chief guest for the occasion, His Holiness Pujya Swami Chidanand Saraswati Ji. To express this heartfelt warmth on behalf of the Maharshi Patanjali group of schools, I now invite our respected Secretary of the MPVM Samiti, Dr. Krishna Gupta, a guiding light herself, graceful in thought, firm in vision and gentle at heart, to formally welcome Swamiji. Ma'am, please. श्री कृष्ण की कृपा से ही ये आयोजन संभव हुआ है, तो उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये हमारा सौभाग्य है कि लोकमणि लाल उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार समारोह की मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, जिन्हें हम सब लोग स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के नाम से जानते हैं। मैं स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन करती हूँ, उनका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप सुविख्यात संत, योगी तथा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष हैं। आध्यात्मिक जन जागरण के साथ पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में आपने गहन योगदान दिया है। स्वामी जी ने परमार्थ निकेतन को एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक और सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया है। आप पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण, गंगा सफाई अभियान, वृक्षारोपण और समता मूलक समाज के प्रति समर्पित हैं। आपका मुख्य संदेश है, सेवा ही सच्ची साधना है। पूज्य स्वामी जी गंगा एक्शन परिवार के संस्थापक भी हैं। यह संस्था वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों एवं भक्तों का विश्वव्यापी परिवार है, जो मां गंगा के जल को निर्मल और अविरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। परम पूज्य स्वामी जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्तंभ है। पूरे विश्व से युवा परमार्थ निकेतन आते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में भी मैंने देखा था कि आपके शिविर में युवाओं का तांता लगा रहता था और उनके लिए बहुत सारे क्रिएटिव, इनोवेटिव कार्यक्रम स्वामी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। सनातन से परिचित कराना, धर्म की प्रतिष्ठा उनके हृदय में करना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो स्वामी जी कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी आपके जीवन को, अपने जीवन को सेवा, प्रेम, करुणा और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति समर्पित किया है। आपके अनुसार समानता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित मानवीय समाज ही मानव के स्वस्थ और सुंदर भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। देना ही उद्देश्य है, जीवन है, देना ही जीवन है। जियो और जीने दो। अभी भी जब स्वामी जी बाइट दे रहे थे, उन्होंने यही बात किया, लिव एंड लेट लिव। हमारी सनातन संस्कृति का यही संदेश है। पूज्य स्वामी जी के जीवन का आदर्श है, आपका जीवन मानवता और विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। पूज्य स्वामी जी अमेरिका, यूरोप, एशिया के देशों की यात्रा करते रहते हैं ताकि सनातन सत्य और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया के लोगों के बीच पहुंचा सके और सारी मानवता प्रेम, सद्भाव और परस्पर बंधुत्व की डोर से जुड़ सके। मैं श्री विनोद बागरोदिया जी, जो हमारे ही परिवार के
एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके प्रति मुझे विशेष आभार इस मंच से व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि आज स्वामी जी जो हमारे बीच में हैं, कल उनकी कल भी थी, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी मीटिंग थी, फिर भी बागरोदिया जी स्वामी जी को विनय अनुनय करके वो हमारे बीच लाए। मैं आपका हृदय से बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता अभिव्यक्त करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकों और समागत गुरुजनों और बंधुजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जूरी मेंबर्स, न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार जी, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रोफेसर अलका अग्रवाल, पूर्व डीन एवं सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर कुमिला थापा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो एक सुविख्यात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका स्वागत करती हूँ। आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और निष्पक्ष चयन के लिए हृदय से आभार। महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर समिति के सदस्यों का शत शत अभिनंदन। महर्षि पतंजलि ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंध समिति के सदस्य, सम्मानित नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम जिन शिक्षकों को सम्मानित करने जा रहे हैं, वे हमारे समाज के दीप स्तंभ हैं, जिन्होंने ज्ञान, समर्पण और प्रेरणा से अनेक विद्यार्थियों के जीवन को आलोकित किया है। विशेष रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर उर्वशी सहानी जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने शिक्षा को समानता, सहयोग और सद्भावना पर आधारित कर आत्मविकास और मानवीय समाज के निर्माण का सशक्त साधन बनाया। नारी जागरण, नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारे प्रेरणा स्रोत और संस्थापक स्वर्गीय लोकमणि लाल जी एक अत्यंत सरल, विनम्र एवं दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और प्रबुद्ध बनाने का संकल्प लिया और उनका विश्वास था कि राष्ट्र का पुनरुत्थान शिक्षा के आलोक से ही संभव है। उनके इसी महान स्वप्न को साकार करने हेतु 1986 में गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर की स्थापना की गई। विद्यालय को महर्षि पतंजलि के यशस्वी नाम से जोड़कर आपने हमें उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया और महर्षि शब्द उनके हृदय में भारत की ऋषि संस्कृति के प्रति अधिक निष्ठा की उद्घोषणा है। वो यही कहते थे, जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वो अपने सेंट्स पर नाम रखते हैं, हमें अपने ऋषियों के नाम पर अपने विद्यालय का नाम रखना चाहिए। कभी उन्होंने अपने नाम को नहीं जोड़ा। आज हम लोग उनको याद करते हैं, लेकिन जीते समय अपने जीवन काल में उन्होंने अपने नाम को कहीं भी नहीं उठाया। He was just a very very silent worker. उनकी इच्छा थी कि यह विद्या मंदिर, महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर, आने वाले अन्य विद्या मंदिरों के लिए प्रेरक एवं आदर्श बने। इसी कड़ी में 1999 में पतंजलि नर्सरी स्कूल, 2003 में गंगा गुरुकुलम, 2011 में पतंजलि ऋषिकुल की स्थापना की गई। मूल्य आधारित सर्वांगीण शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण हमारे मूल उद्देश्य हैं। देश को चरित्रवान नागरिक देना ही हमारा लक्ष्य है। शिक्षा को वंचित वर्गों को तक पहुंचाने के लिए पतंजलि सर्व शिक्षा विद्यालय और बाल गुरुकुलम की स्थापना की गई। महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाने के लिए महिला स्वावलंबन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स जो है वो फ्री शिक्षा, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे विद्यालय के पास के मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं, और जो आसपास में रहने वाली महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको घर से बाहर निकाल के उनमें आत्मविश्वास का दीप प्रज्वलित करते हैं, उनको हुनर देते हैं, स्किल्स देते हैं,
ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर विकास की प्रक्रिया में सहभागी बन सकें। महिलाओं को हमारा विश्वास है कि शिक्षा द्वारा ही देश का विकास, देश को उन्नत शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। हमारी आंखों में श्रद्धेय पिताजी के स्वप्न हैं, कानों में उनके संकल्प की गूंज है। उनके स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य है। उनके द्वारा लगाए गए ज्ञान के वटवृक्ष के प्रकाश को चतुर्दिक विस्तृत करना हमारा उद्देश्य है। हम अपने संस्थाओं के आदर्शों को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। संस्थापकों के आदर्शों को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी इस यात्रा में आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद और सत परामर्श आवश्यक है। एक बार पुनः मैं सबका स्वागत करती हूँ तथा परम पूज्य स्वामी जी का हृदय से अभिनंदन, उनके पावन चरणों में शत शत नमन करती हूँ। Thank you, ma'am, for that gracious welcome. We are truly blessed to have Pujya Swamiji's divine presence with us today. Ladies and gentlemen, as we continue our program, to honor the finest minds in education, we must first seek blessings from the eternal source of intellect itself. Let us turn our focus inward and invoke the blessings of Sri Ganesha, the remover of darkness, the master of learning, to ensure our proceedings are imbued with auspiciousness, clarity, and unobstructed success. So here I invite the students of Maharshi Patanjali Vidya Mandir to present a Ganesh Stuti. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। विघ्नराज तू महाताज तू महेशाय तू मोरया चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानन 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 गजानन
Thank you, students. The children truly lit up the stage with their grace and energy. Let's give them a loud round of applause, everyone. ठाता हूँ अपने जन्मों की गाथा का छोटा सा सार सुनाता हूँ। मैं वही नारायण हूँ जिसके धैर्य को भृगु ऋषि ने जांचा था। मैं वही कृष्ण मुरारी हूँ कालिया के फन पर जो नाचा था। अब सुन लो इतिहास चतुर युगों का, तुमको मैं आज सुनाता हूँ। अपने दशावतारों का दर्शन तुमको मैं आज कराता हूँ। अपने दशावतारों का दर्शन तुमको मैं आज कराता हूँ। जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतार लिया, ताकि बुराई का नाश कर धर्म की स्थापना की जा सके। आज हम पतंजलि ऋषिकुल के छात्रों के साथ उन्हीं महान 10 अवतारों की गाथा का सजीव चित्रण देखेंगे और उनके महत्व को समझेंगे। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादिव्यभासं गदा चक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुराणीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृतानायदानं कदादेशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारात्मानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामलेशं द्विरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम्
महावीरधीरं भवं बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुभीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् जहां ज्ञान का दीपक बुझा है, अंधेरा है चारों ओर, राहें हैं अजनबी सब, न मिलता कोई ठौर। अक्षर भी है शत्रु जैसे, मन में भय की छाया, जीवन एक बोझ लगे, न कोई आशा की माया। वह सूर्य जो ज्ञान का तेज दिखाता, वह गुरु ही है जो भव सागर पार लगाता। गुरु ने उंगली थामी, भय के बंधन काटे, राह दिखाई सही डगर की, संशय सारे बाटे। जब ज्ञान की किरण फूटी, शिक्षा ने द्वार खोला, हर प्रश्न का उत्तर मिला जब किताबों को टटोला। अज्ञान की बेड़ियां टूटी, मन में साहस जगा, सीखने की धुन में खोकर एक नया सवेरा उगा। वो कमजोर दिखता था, अब है आत्मविश्वास से भरा। संस्कार मिले, बुद्धि बढ़ी, जीवन की दिशा सुधारा। अब काबिल है वो हर जंग में, सत्य को पहचानता। शिक्षा ने दिया सम्मान उसे, जग उसे है मानता। यही ज्ञान की मशाल जब गली गली में पहुंची, हाथ में हुनर आया, सुलझी हर गुत्थी जो थी उलझी। शिक्षा से जब शोध बढ़े, तब नई खोज साकार हुई। जीवन को सुखद बनाने की हर मुश्किल आसान हुई। शिक्षित हो जब हर नागरिक, तो देश हो महान। शिक्षा ही है वो शक्ति जो बदल दे सारा जहान।
मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः मंच पर विराजमान देखो भाई, किसी को कोई इमरजेंसी बात करनी हो तो 10-12 सेकंड में पूरी कर लो। कई बार होता है कोई मन की बात मन में ना रह जाए तो थोड़ी देर चुप रहना होगा, तो कुछ भी इमरजेंसी बात हो खत्म कर लो। If anybody has any emergency talk, please finish in 12 to 15 seconds. I'll appreciate it. मंच पर विराजमान आदरणीय श्री विनोद बागड़ोदिया जी, आदरणीय श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी, हमारे आरओ ऑफ CBSE इन प्रयागराज श्री अनिल जैन जी, और हमारे आदरणीय श्री रविंद्र गुप्ता जी, और हमारे प्रिय श्री यशोवर्धन जी एंड रेखा। मेरे समक्ष बैठे हुए सभी मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वैसे तो आज आना कमिट तो कर दिया था मैंने, लेकिन बहुत मुश्किल सा लग रहा था मुझे। मैंने बागड़ोदिया जी को फोन करवाया, विनोद जी को कहा कि बात कर लो, कैन वी चेंज इट फॉर 17th इफ इट्स नॉट इनकन्वीनियंट फॉर देम। अपने घर का फंक्शन है, सब घर वाले ही हैं, कोई दिक्कत ना हो तो चेंज करके देंगे, क्योंकि कैसा हैड टू बी
इन मथुरा वृंदावन, क्योंकि वहाँ कई लाख लोग, सभी संत, और वहाँ आज एक सनातन एकता यात्रा का समापन था। तो लेकिन हमारे बागड़ोदिया जी का समर्पण, उनकी सेवा, उनकी प्रार्थना, और आदरणीय कृष्णा जी कई बार मुझे कुंभ मेला में मिली, और हमारे गुप्ता जी, तो मुझे लगा चलो वचन दिया है तो ये तो वचन निभाने की धरती है, तो मैं आज आपके बीच में हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे पहले जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारी जो सभी कन्याएं थी। कितना प्यारा 10 अवतार को उन्होंने कुछ सेकंड में ही दर्शन करा दिया। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद मुझे और अच्छा लगा जब पांचों के पांचों अभी मेरे सामने के जो विजेता हैं, वेदर इज ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेदर अदर अवार्ड्स, वो सब शक्तियों को मिला, नारियों को मिला। ये बहुत अच्छा लगा। आई लव इट। टाइम हैज कम। वैसे भी मुझे कई बार कॉन्वोकेशन के लिए, दीक्षांत समारोह के लिए जाना पड़ता है अपनी उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन या अपने अन्य गवर्नर्स के साथ में कई कॉन्वोकेशन में जाता हूँ। वन थिंग इज ब्यूटिफुल टू सी, नॉट ओनली द कॉन्वोकेशंस बट whenever is a result, CBSE का आता है या दूसरे बोर्ड्स का आता है, सबसे ज़्यादा नंबर मारने वाली, नंबर लेने वाली हमारी बेटियां होती हैं, सबसे आगे। बहुत बड़ी बात है ये, और इस समय आ रहा है कि हम किसी से कम नहीं। ये कहना नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में किसी से कम नहीं। अगर घर में दम बनाए रखना हो, परिवार को अगर मजबूत रखना हो, समाज को मजबूत रखना हो, राष्ट्र को मजबूत रखना हो, इसलिए हमारे आदरणीय यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राष्ट्रपति के लिए भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को चुना। कोई सोच सकता था, लेकिन उन्होंने चुना। उनको लगता था कि समय आ गया है। और उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या कई देशों की नहीं है। सब देशों के मिला के एक देश बने तो उत्तर प्रदेश। और उसमें भी उन्होंने गवर्नर को चुना तो हमारी आदरणीय आनंदीबेन जी को चुना। फिर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने सोचा अब समय आ गया है, एक योगी की आवश्यकता है। लोगों को पता लगे कि यस, द पीपल हु आर सिटिंग इन द बैक, सिटिंग इन द माउंटेन्स, डूइंग साधना, they can also do it. क्यों? Because honesty, integrity, loyalty to the nation makes a big difference. और योगी जी ने ये करके दिखाया है, कमाल कर दिया है। पूरे विश्व में लोग मुझे कहते हैं जब भी मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल गया है। ये बदलती तस्वीर ही इस देश की तकदीर है, इस देश की तस्वीर है। तो सबसे पहले तो इन मातृशक्ति के लिए और हमारी बेटियों के लिए जोरदार तालियों से हम लोग उनका अभिनंदन करें। देखिए, एक और भी बात थी जो मुझे यहाँ खींच के लाई, वो है एक सोच। स्वामी विवेकानंद हॉल में बैठे हम लोग। स्वामी विवेकानंद एक बात बड़ी प्यारी कहते थे। वो कहते थे सारा संकट सोच का है, और सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। सोच बदलती सब कुछ बदलता है। और एक सोच दी हमारे मणिलाल जी ने और हमारी दया कांति माँ ने। उस समय में
ये सोचना कि शिक्षा भी हो, उसके साथ गुरुकुल ट्रेडिशनल शिक्षा भी हो. द टच इज नीडेड. टू मी एजुकेशन इज नॉट teaching, it's a touch, and especially when it's given by the mothers, it makes a big difference. इसलिए मातृशक्ति को भी मैं देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशन में पढ़ाने वाली मातृशक्ति है, क्योंकि उनका बात ही अलग होती है. भगवान ने, because God could not be everywhere, that's why He has created mothers. You have very special heart. You have a very special heart. अब तो सच में बताऊं, मैं अभी एक फंक्शन में था, तो उसमें यंग जोड़े थे सभी. उनका शादी की सफलता का रहस्य क्या है? मैंने कहा वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आजकल के युग में अगर कुछ कहना हो तो एक ही 2 शब्दों का मंत्र है, 2 letters. वैसे तो वेडिंग लाइफ में, मैरिड लाइफ में either you can be married or you can be right. You cannot be both. हो ही नहीं सकता, नहीं तो झंझट ही होता रहेगा. Either you can be married or you can be right. और दूसरा मंत्र है जो सब पर लागू होता है, लेकिन अगर घर को बसाए रखना हो तो वो है ओके हनी. सच्ची कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये, क्योंकि मुझे पूरे वर्ल्ड का अनुभव है. जिस परिवार में मैं जाता हूं वो सच्ची कहते हैं, अगर घर को बढ़िया बनाए रखना हो, ओके हनी, खुश रखिए परिवार में देवी को. ये क्यों मैं कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, समय आ गया है. आज हमने ये सोचा और सोचते आए, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस संस्कृति में एक मंत्र था, यत्र नार्यस्तु, था ना एक मंत्र, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां घर में देवताओं का निवास होता है. लेकिन उसी देश में हम सोचते हैं नारी को थोड़ा सा सम्मान ला के दे, बर्थडे है तो साड़ी ला के दे, ज्यादा तो सॉलिटेयर ला के दे, तो खुश कर लेंगे. लेकिन मैंने देखा है, पूरे विश्व में देखा है, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं कि नारी को सामान से खुश नहीं किया जा सकता. नारी को यदि आप खुश रखना चाहते हैं तो सम्मान देकर खुश रखिए. घर में जिस नारी का सम्मान है, आज यही शिक्षा अपने बच्चों को देनी है. बचपन से ही बच्चों को सिखाना है, बेटा बेटी एक समान, दोनों के अंदर एक ही भगवान है. लेकिन नवरात्रि के अवसर पर हम लोग उनकी पूजा करते हैं, कन्या को जिमाते हैं, कन्या का पूजन करते हैं. नदियों को भी माँ कहा, क्योंकि हम नदी के तट पर हैं. गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है. लेकिन आज उन्हीं की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है. मैं नंबर्स नहीं देना चाहता हूं आप लोगों को, लेकिन इट इज हैपनिंग. इसलिए विद द मॉडर्न एजुकेशन वी हैव टू टीच कि कैसे mere एजुकेशन इज नॉट एनफ. वो जीविका का साधन तो देती है, इंफॉर्मेशन तो देती है, लेकिन इंस्पिरेशन पाने के लिए तो हमें अपनी संस्कृति की ओर जाना होगा. गूगल तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे ही रहा है, बैठे बैठे ले सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन पाने के लिए हमें उस ऋषि कल्चर की ओर जाना होगा. वी आर लिविंग इन AI एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज. लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा समय आएगा, नो मैटर व्हाट, इवन यू आर लिविंग इन इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज, लेकिन जरूरी नहीं कि आप खुश रह पाएंगे. सफल तो हो जाएंगे, स्पीड तो होगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी. स्पीड के लिए AI चाहिए,
लेकिन डायरेक्शन के लिए RI चाहिए, ऋषिस इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और व्हाट इज ऋषिस इंटेलिजेंस एनीवे? कैन यू बिलीव इट टुडे? भगवान ने भगवद गीता में, वो भी कहा युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में, वहां पर अर्जुन को लड़ाई का मैदान है और मंत्र क्या दे रहे हैं? इफ यू वांट टू बी हेल्दी, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, फॉलो फ्यू थिंग्स। और वो मंत्र है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बोले योग क्या है? योगा इज अ बैलेंस, इज अ डिसिप्लिन, discipline of mind, balance of mind, balance of discipline of senses and discipline of yourself। आज जिस योग को हमारे आश्रम में पूरे विश्व से 135 देशों के लोग सीखने आते हैं, और जब इंटरनेशनल योग फेस्टिवल होता है तो उस समय 100 देशों से ज्यादा लोग होते हैं। इट मीन्स ऑल रिलीजन्स, ऑल नेशंस। Just imagine, just to learn yoga, and yoga is not what you do, yoga is what you are. Yoga is not only on the mat, it's for 45 minutes to 1 hour to 2 hours, but yoga is off the mat. इसलिए मैं पढ़ रहा था अभी, the great aim of education is not knowledge but action. Because yoga is not what you do, what you are. अगर आप बैलेंस नहीं है तो आपके जो भी एक्शन होंगे बैलेंस नहीं होंगे, आपके निर्णय बैलेंस नहीं होंगे। और वो बैलेंस कहां से शुरू हो? तो उसके लिए कहा युक्ताहार विहारस्य, बैलेंस्ड इन डाइट। आज सबसे ज्यादा मेस अपनी हेल्थ होती जा रही है। जब खाना है तब सो रहे होते हैं, जब सोना है तब खा रहे होते हैं। रात को 12 बजे, मुझे बोले हमारा तो दिन ही 12 बजे शुरू होता है, हद हो गई। आज इसलिए इस गुरुकुल प्रणाली की आवश्यकता है। एजुकेशन इज ग्रेट, बट एट द सेम टाइम अगर जीवन को बदलना है तो एजुकेशन के साथ साथ, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन भी चाहिए। आज एजुकेशन भी मिल गई, डॉक्टर भी बन गए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 डॉक्टर, many more doctors will be involved there. What happened 2 to 3 days ago? मेडिकल एजुकेशन लेने के बाद भी ब्लास्ट कर रहे हैं। क्यों ब्लास्ट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ और सिखाया जा रहा है, कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कुछ और बताया जा रहा है। ये मेडिकल की डिग्री में नहीं पढ़ाया जाता। मेडिकल की डिग्री तो आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो कहती है कि मेडिकल में डॉक्टर बनने के बाद लोग क्या कहते थे, डॉक्टर साहब आप तो भगवान की तरह, प्लीज बचा लीजिए। कोविड में नहीं देखा आप लोगों ने? एक सिलेंडर के लिए, एक कॉन्सेंट्रेटर के लिए, एक सांस के लिए डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर भगवान का रूप होते थे, आज कुछ लोगों ने उसी डॉक्टर के दर्जे को शैतान का रूप दिया और ब्लास्ट किया। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति तो है जियो और जीने दो, जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, लिव एंड लेट लिव। ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए ऐसे गंगा गुरुकुलों की, ऐसे परिसरों की आवश्यकता है जहां पर अपने संस्कार भी दिए जाते हों, जहां एजुकेशन तो हो लेकिन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी हो, जो जीवन में जीना सिखाए, केवल कमाना ना सिखाए। टुडे आई सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हेनेवर आई मीट द यंग पीपल, they are earning in 6 to 7 figures, but their own figure is gone.
Everything is set because they are earning money. Latest सब कुछ उनके पास है, लेकिन in spite of everything said, they are upset. They are not happy. छोटी सी लड़की मुझे बोली, अभी आश्रम में आई थी, मुझे बोली है, कैन यू गिव मी वन मंत्रा? मैंने व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाई यू नीड मंत्र? यू आर वेरी यंग. ही सेड आई नीड पीस. मैंने कहा व्हाट? हाउ ओल्ड आर यू? शी सेड आई एम 11. आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट. 11-year-old girl, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट. इसका मतलब है हमें अपने घरों से शुरुआत करनी होगी. अपने घरों में बताना होगा उनको कि जीवन क्या है, जीवन की शुरुआत कैसी हो. हम अब उनके साथ बैठे, उनको पढ़ाना नहीं है, उनको सिखाना नहीं है. फॉर किड्स नाउअडेज प्रीचिंग और टीचिंग इज ईचिंग. मां तुरंत, इसलिए सिखाने की बजाय हम खुद करने लगे. शाम को कितने भी बिजी हो, सोने से पहले 5 मिनट निकाल लें. हैव ए पीस कॉर्नर. परमात्मा का कॉर्नर हो या पीस कॉर्नर हो या डिवाइन कॉर्नर हो, गिव वट एवर नेम आई वांट टू. इफ यू डोंट वांट टू बी कॉर्नर्ड इन योर लाइफ, क्रिएट ए डिवाइन कॉर्नर और ए पीस कॉर्नर. एक छोटा सा कोना जिसमें सब कुछ बैठ के 5 मिनट के लिए सही ध्यान करें. Life is not only a collection, life is a connection. Our children are collecting so much, making so much, but their connection is not to themselves, not to the family. माँ को भी आज मैसेज भेजना पड़ता है कि बेटा लंच इज रेडी, कम डाउन. ऊपर छत पे है या दूसरे फ्लोर पे है, यस मॉम आई एम कमिंग. 3 मैसेज भेजने पड़ते हैं. टेबल पे बैठते हैं तो भी सबके हाथ में मोबाइल होते हैं. एक कार में होते हैं, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड बट दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. इसलिए आज की एजुकेशन के साथ साथ, आज एकादशी का दिन है. कल था कि आज है? कल था. कल एकादशी का दिन था. आज कौन सा वार है? हम लोग को तो याद ही नहीं रहता है कहाँ जाते हैं. संडे है. कोई लोग रविवार का, कोई सोमवार का, कोई शुक्रवार का, सारे व्रत करते हैं. मुझे तो लगता है आज, क्योंकि भगवान ने जब डाइट की बात की, वहां पर उपवास की बात की है गीता जी में. उपवास मन को शांति देता है, उपवास कनेक्टिविटी देता है, उपवास आपको हेल्दी रखता है, उपवास आपको बैलेंस देता है. लेकिन मुझे लगता है आज की पीढ़ी के लिए, और आज की पीढ़ी के लिए नहीं, अपने सबके लिए, सबके लिए. मैंने तो बाबाओं को भी यहां पर मोबाइल में देखा है, महाकुंभ मेला में आपने देखा होगा. नहीं, सबके लिए, सबके लिए ये बात सोचने की है कि फास्टिंग करें जिस दिन करना हो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है. मुझे याद है जब हम अमेरिका में थे, आदरणीय मोदी जी आए पहली बार जब अमेरिका गए वो, और मीन्स एज ए प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वेंट टू अमेरिका फर्स्ट टाइम. उसके पहले भी हम लोग थे, लेकिन वो उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे. लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर होके गए तो मुझे याद है 6ठा दिन था, और वो इतनी लंबी यात्रा थी उनकी. सब जगह यात्रा करने के बाद शाम को एक डिनर का प्रोग्राम था. अपने देश के भी जो बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी जी और अन्य सब बड़े बड़े लोग थे वहां, और अमेरिका के पूरे वर्ल्ड के टॉप लोग वहां पर थे. शाम को डिनर हुआ. मोदी जी को देखिए, 6ठा दिन है, केम ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट मीटिंग्स, होल डे बिजी टॉकिंग टू मिस्टर बराक ओबामा एंड मेनी अदर लीडर्स. लेकिन शाम को सब खा रहे हैं, वो खड़े हुए, 1.5 घंटे तक उन्होंने स्पीच दी, केवल नींबू और शहद का पानी. 9 दिन तक, आज से नहीं, पिछले 40 सालों से वो इसी तरह से रहते हैं, और साल में 2 बार नवरात्रि करते हैं. इफ दैट मैन हु इज सो बिजी कैन डू इट, वी कैन डू इट. लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो फास्टिंग की बात से मुझे याद आई जिसकी भगवत गीता ने कही. लेकिन आज मैं किसी और फास्टिंग की बात करना चाहता हूं.
और वो फास्टिंग है मोबाइल फास्टिंग। शाम को सोने से पहले पक्का नियम बना लें रोज का, मोबाइल फास्टिंग 9 o'clock, नहीं जैसा मोबाइल फास्टिंग। नींद बढ़िया आएगी, सपने अच्छे आएंगे, आप रिलैक्स्ड होंगे, नहीं तो सवेरे थके थके होंगे। बिस्तर पे सोते सोते आने वाले समय में सर्वाइकल पेन और कई तरह के पेन, कंधों में पेन, शोल्डर में पेन, हाथों में, और मेंटली मेमोरी विल बी वेरी लेस, गॉन। सब कुछ तो उसी से चल रहा है। इसलिए अपने आने वाले बच्चे चिड़चिड़े ना हो, इरिटेटेड ना हो। छोटी छोटी बातें होती हैं, स्मॉल थिंग ट्रिगर एंड दे बिकम टाइगर। इसलिए हमें कुछ अपने जीवन की पद्धति को बदलना होगा। इसलिए भगवान ने पहले दिन कहा बैलेंस इन डाइट, बैलेंस इन स्लीप, बैलेंस इन माई आवर एक्शंस। डाइट को क्यों कहा? क्योंकि आज देख लो सबसे ज्यादा समस्या कहां पर आ रही है? खाने पीने से। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वॉच योर डाइट, ये मत खाओ, ये मत खाओ। मतलब डॉक्टर कहे तो नहीं खाना है। इसलिए ईट लेस, ईट लाइट, ईट राइट, ईट लाइट एंड ईट राइट, लेस फ्राइड और नो फ्राइड। आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बाकी बहुत लंबा श्लोक में उस ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा समय होगा। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अपने परिवारों में, अपने जीवन में, केवल इसलिए नहीं कि उनको हमें टीच करना है कि मोबाइल यूज मत करो। यू नो, अभी हमारे देश में तो अभी नहीं हुआ, काश हमारे देश में हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट वीक पार्लियामेंट में एक लॉ बन गया। काफी दिनों से चर्चा में था, डिस्कशन होता रहा, सजेशन मांगे गए, लेकिन उसके बाद अब पास हो गया। 18 साल की कम एज के बच्चे अब कोई भी मोबाइल या सोशल मीडिया पर नहीं जा पाएंगे। फ्रांस में भी पास कर दिया, 16 साल की एज के नीचे के बच्चे मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर सीइंग द आउटकम ऑफ इट। उसका रिजल्ट इतना गलत आ रहा है। हमें 10 साल के बाद पता लगेगा, उनको पता लगने लगा। इसलिए अपने परिवारों में एजुकेशन के साथ साथ हमारे साथ जो शिक्षा थी, उसके साथ जो संस्कार थे, वो यही थे कि हाउ टू मेंटेन योर बैलेंस। बल्कि हमारा शास्त्र कहता है कि सब कुछ करो लेकिन इंसान बने रहो। आज अपने घर में ही सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी पत्नी बोल देती है थोड़ा तो आदमी इंसान बनो। जब आदमी ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा तो ध्यान रखो, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा तो ध्यान रखो। ये बातें आती हैं। इसलिए हमारे यहां कहा मनुर्भव, इंसान बनो। धरती की खुशबू बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी चीजों से नहीं है। धरती की खुशबू इंसानों से है, और इंसानों की खुशबू इंसानियत से है, और इंसानियत की खुशबू सेवा से है। सच्ची बात है जज साहब, इंसानियत की खुशबू सेवा से है, समर्पण से है, सद्भाव से है, समानता से है। इसलिए सेवा का ये बीज लगाया जो आज वट वृक्ष बन गया है आपके पूर्वजों ने। इसलिए ये बीज लगाया, उनको मालूम था जोड़ के छोड़ जाने में कोई सार नहीं है, पीछे वाले क्या करेंगे पता नहीं है। जोड़ के छोड़ जाना नहीं, बल्कि जोड़ना भी इसलिए है, बटोरना भी इसलिए है, वो बांटने के लिए। उन्होंने जीवन को समझा कि बटोरना अकेले अपने लिए जिंदगी में विषाद पैदा करता है, और उस बटोरे हुए को लगाना सबके लिए वो जीवन को प्रसाद बना देता है, प्रसाद बना देता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा शतहस्तेन संकिर और सहस्रहस्तेन समाहरा। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से लगाओ। ये जीवन था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक नहीं कई जगह खड़ी की
संस्कार दिए, और आज यही संस्कार हैं, इसलिए हम उनको स्मरण कर रहे हैं। जो केवल अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है, लेकिन जो समाज के लिए जीते हैं उनका स्मरण होता है। इसलिए हम उनका स्मरण कर रहे हैं। बार बार उनको हम देख रहे हैं पर्दे पे जब उनको लाया जाता है उनके नाम को। लेकिन मजे की बात यह है, अपने नाम को उन्होंने कभी भी नाम रखा तो गंगा गुरुकुल, नाम रखा तो कुछ और है, महर्षि पतंजलि, अपने उन ऋषियों के नाम पर, अपने नाम पर नहीं। वो चाहते तो अपने नाम पर भी बहुत कुछ छोड़ सकते थे। इसलिए आज आप लोगों को भी, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको भी आज मेडल भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है और राशि भी मिली है। मैं सच कहना चाहता हूं, आप वो लोग हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेनासिटी, अपनी टीचिंग सब दिया। लेकिन जीवन केवल मेडल पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मॉडल बना देने के लिए है। आपने अपने जीवन में मेडल भी रिसीव किए और अपने जीवन को मॉडल भी बना दिया। और एक मॉडल हमारे सामने है, ये स्कूल, जिसमें ना जाने कितने बच्चों को शिक्षा मिली और मिलती रहेगी। यही जीवन है। मुझे अभी पूछ रहे थे वो कोई, हाँ, दूरदर्शन वाले, जब मैं आया तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, आपको कैसा लगता है जो नई शिक्षा नीति है? मैंने, इफ यू आस्क मी, आई लव इट, इट इज टू लेट। इसको तो आजाद होने के साथ ही आ जाना चाहिए था। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं, जब देश आजाद हुआ तो जो बताया जाना था वो छिपाया जाता रहा, और जो बिल्कुल भी नहीं था उसको पढ़ाया जाता रहा। आज आदरणीय यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति 2020, सच तो मानिए, आदमी डॉक्टर के पास जाता है, मैं उनको बोल रहा था, तो जब डॉक्टर के पास जाता है, जिनको चश्मा लगा उनको पता है, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो चेक कराते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी विजन कितनी है, और जब बिल्कुल ठीक होती है तो 20/20 बताते हैं। अगर विजन 20/20 चाहिए ताकि आप ठीक से देख सकें, अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में विजन 2020 चाहिए शिक्षा नीति में, ताकि आप ठीक से जी सकें, आने वाली पीढ़ियां अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को, अपनी पहचान को आने वाली संतति को पहुंचा सकें, इसलिए ये नीति बहुत जरूरी है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा बदलाव आया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, लेकिन जिस दिन पूरा परिवर्तन आएगा, आप देखेंगे इस देश का नक्शा बदल जाएगा, इस देश का नक्शा बदल जाएगा, और आपके नक्शे कदमों पर आपकी संतति चलेगी, और फिर उनको लगेगा कि यस, वी आर नॉट ओनली सक्सेसफुल, वी आर हैप्पी आल्सो। नहीं तो क्या होता है, सफलता तो मिल जाती है लेकिन प्रसन्नता कहीं खो जाती है। आज बहुत लोग सफल हैं, मैं तो पूरे वर्ल्ड में लोगों से मिलता हूं, दे आर वेरी हैप्पी। लुक एट स्टीव जॉब, आप उसके लेटर को पढ़िए, एंड ऑफ द डे व्हाट ही हैज रिटन फ्रॉम द हॉस्पिटल। आई वॉज विद ओपनहाइमर, जिसने परमाणु बम दिया। आई वॉज विद कार्ल सैगन, जिसने एस्ट्रोफिजिसिस्ट बिग बैंग की थ्योरी दी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का हुआ। लेकिन अगर आप पूछेंगे मुझसे, वो क्या लिखते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में क्या लिखते हैं, और भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या शोध है, तब आपको लगेगा हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको भारत में जन्म देकर परमात्मा ने हमारा सम्मान किया है। इसलिए अपनी संस्कृति को जानिए। यही आदरणीय मोदी जी का प्रयास है कि अपनी संस्कृति को जानो, अपनी संस्कृति को समझो, तब पता लगेगा कि हम तो दूसरे चश्मों से आज तक देखते रहे भारत को। भारत को आज भारत के चश्मे से देखने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी शिक्षा नीति में पढ़ेंगे, ये घाल मेल का कल्चर नहीं है, ये ताल मेल का कल्चर है। लेकिन जिन लोगों ने ताल मेल के कल्चर में घाल मेल करने की कोशिश की, उन्हीं लोगों ने ब्लास्ट करने के प्रयास किए।
इसलिए आज हमें समझना है, हमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति की नीयत बुरी हो जाती है तो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए भी विध्वंस का निर्माण करता है। हमारी संस्कृति विध्वंस की नहीं, निर्माण की संस्कृति है। इसलिए हम सब मिलकर अपने जीवन को, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, इसी तरह से खड़े हों, आगे बढ़े, अपने देश को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है इस समय यदि कोई भी काम, अभी मुझे पता लगा वंदे मातरम की बात आई, राष्ट्रगान की बात आई, लोग चिल्लाने लगे, अरे वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, वंदे मातरम मीन्स व्हाट? राष्ट्रगान माने क्या? हम तो रोज ऋषिकेश में, रोज गंगा जी की आरती होती है, यहां प्रयागराज में भी थे और आज भी आरती शुरू है प्रयागराज में भी, और वहां पर भी कुंभ के मेले में भी जब शाम को आरती पूरी होती और जनगणमन से अपने राष्ट्रगान से हम लोग शुरू होकर देश को नमन करते हुए, राष्ट्र के ध्वज को नमन करते हुए हम लोग पूर्णाहुति करते थे। मुझे लगता है कि समय आया है, जो भी अपने अपने ढंग से पूजते हैं अपने ढंग से पूजें, नथिंग रॉन्ग इन इट, वर्शिप योर ओन। आवर कल्चर से दिस इज द स्पिरिट ऑफ इंडिया, वर्शिप योर ओन बट रेस्पेक्ट ऑल, let all the noble thoughts come from all the directions, and from all direction when I say this is a mantra of Vedas, ano bhadraha kratavo yantu vishwatah, ये मंत्र है। respect all, worship your own, let all the noble thoughts come from all directions। ये जब हमारे पे संस्कृति है तो ऐसी संस्कृति में जीने वाले हम लोग ये बात याद रखें कि ये वतन भी अपना है, ये सबका वतन है, साझा वतन है, सबको इसको मिलकर सजाना है और मिलकर चमन बनाना है। इसलिए छोटी छोटी बातों में शक करते हुए, शिकायतें करते हुए हमने इस देश को नहीं बल्कि सबको मिलकर 145 करोड़ लोग मिलकर सजाएं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अन्यथा इन छोटी छोटी बातों से देश कमजोर होता है। देश को मजबूत बनाना है, तब फिर ऐसे ब्लास्ट नहीं होंगे, फिर ऐसी चीजें नहीं आएंगी। एक मौलाना साहब मुझे बोले हम मिलकर इबादत नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आई हैव नेवर टेल यू लेट अस वर्शिप टुगेदर, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, अगर मिलकर इबादत नहीं कर सकते हम मिलकर हिफाजत तो कर सकते हैं। हिफाजत करें अपनी मिट्टी की, अपने वतन की, अपनी नदियों की, अपने पेड़ों की, अपने पानी की, मिलकर, क्योंकि ये सांझे हैं, ये सबके लिए हैं। नदियां सबकी हैं, पेड़ सबके लिए हैं, पहाड़ सबके लिए हैं। आज इस कल्चर को हमें स्कूलों के माध्यम से लाना होगा। लोग पूछते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर फ्यूचर। मैं कहना चाहता हूं द नेचर ऑफ आवर फ्यूचर इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेचर। नेचर बचेगी तो सब कुछ बचेगा। आज आपको पता है वायु प्रदूषण से, मैं अभी अभी वाया फ्लाइट से दिल्ली से आ रहा हूं, कितना था बताइए, 400 के पार, और बीच में तो 500 के पार, केवल जहर पी रहे हैं। समय आ गया है, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि आप स्कूलों से सिखाइए, स्कूलों से कहिए उनको अपने बर्थडे को ग्रीन बर्थडे के रूप में मनाएंगे। लेट अस प्लांट द प्लांट टुगेदर, लेट अस दिस प्लान टुगेदर कि ग्रीन बर्थडेज, ग्रीन मैरिज एनिवर्सरीज, ग्रीन फेस्टिवल्स, और ये शुरुआत स्कूलों से हो। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है जब दिया गया तो मुझे पौधा दिया गया। हम तो सब जगह जहां जाते हैं पौधा ही देते हैं। अब तो ये चाल चल पड़ी है, ये भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जब जगह जगह मिलते हैं उनको भी, और वो जो जाते हैं वो भी खुद अब पौधा देने लगे हैं। इसलिए मुझे लगता है अपनी पीढ़ियों को ये बताना होगा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हमने तो कुंभ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए कैंप लगाए। यू विल नॉट बिलीव इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हम अपने आश्रम में
इतने कैंप लगाते हैं जगह जगह स्कूलों में, क्योंकि जो हमारी आदि शक्ति है देश की, वो उसको जाना पड़ता है इसके थ्रू। वो कैसे उनके लिए हम लोग ये प्लान करें ताकि हमारी बच्चियों को इस बीमारियों से सामना ना करना पड़े। ये सारी चीजें अपने देश को महान बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को जीने के लिए हमें अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने स्कूलों में, स्कूल में वो लोग कुछ घंटे रहते हैं, लेकिन परिवारों में वो आपके साथ मातृशक्ति सबसे ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमने मातृदेवो भव, मां को हमने महान कहा, मां को हमने आचार्य कहा, गुरु कहा, मां को हमने भगवान कहा। इसलिए घरों से ये बात शुरू हो। घर में दिए गए संस्कार समाज को मजबूत बनाएंगे, राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। और आइए मिलकर हम सब इन शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से, इन शिक्षा के परिसरों से राष्ट्र को, अपने जीवन को, क्योंकि अपना जीवन यदि मजबूत नहीं होगा, हम राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकते। तो स्वस्थ रहने के लिए रोज थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें और साथ ही साथ एक्सरसाइज करें, खाने का ध्यान करें और रात को मोबाइल फास्टिंग करें। रात को सोने से 9 बजे पहले मोबाइल को दूर कर दें। एक तो वैसे भी ब्रेन के लिए बिस्तर के पास बिल्कुल ना रखें। नई रिसर्च आई है अभी, थोड़े समय में लोगों को पता लगेगा कि ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया और सारी प्रॉब्लम आ गई। इसलिए सोने से पहले मोबाइल को दूर कर दीजिए, मोबाइल की छुट्टी कर दीजिए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, नींद अच्छी आ सके। और आपके बच्चे आपको देखेंगे तो वो भी वही करेंगे जो 12-12 बजे तक। आपको तो मालूम ही है कितना मुश्किल होता है, और सवेरे 10 बजे तक उठते नहीं है फिर वो लोग। लेट अस गिव देम ए न्यू लाइफ स्टाइल। ये सारा लाइफ स्टाइल का बात है। डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले आज कहता है अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो। दवाई तो बाद में, पहले लाइफ स्टाइल चेंज करो। इसलिए आइए, ऋषियों की जो लाइफ स्टाइल थी, चिड़िया भी टाइम पे सो जाती हैं, जानवर भी टाइम पे सो जाते हैं, और हम सब लोग टाइम को पार करते जा रहे हैं। टाइम को ना देखते हुए, ना ध्यान देते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। शिक्षा मंदिरों से ये शुरुआत भी होनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा और हमारा देश समृद्ध होगा। बहुत सारी बातें मन में है, लेकिन बहुत सारी देर हो चुकी है, क्योंकि मेरे को आने में भी फ्लाइट में देर हुई। इतने में ही मैं इतना कहूँगा, आज आप सबका यहाँ पर मिलन हुआ, आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन हुआ। और पुनः मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए 2 घोष कराना चाहूँगा, ताकि सब मिलकर जोर से हाथ, मुट्ठियां अपनी बंद करके, भारत माता की। मुझे पता अभी भोजन नहीं किया है, मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ, मुझे भी अभी करना है, लेकिन मेरे साथ अगर मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ तो आइए मिलकर, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। For your inspiring and enlightening words. Your message resonates deeply in our hearts, and your blessings will continue to inspire us to serve humanity, uphold harmony, and strive for a brighter and enlightened future. As we come to the close of this memorable evening, we are filled with the gratitude of the inspiring words, wonderful performances, and the joyous celebration of excellence we have witnessed today. To formally conclude this event, I now invite the Dynamic Director of Maharshi Patanjali Group of Schools and the Awards Director, Shri Yashovardhan Ji, to kindly come to the stage to deliver the vote of thanks. Please join me in welcoming him with a warm round of applause. Pujya Swami Ji, respected Mr. Anil Kumar Jain, Regional Officer CBSE Prayagraj, and other esteemed dignitaries on the dais. I most humbly offer my heartfelt gratitude to His Holiness Pujya Swami Siddhanand Saraswati Ji,
a world-renowned spiritual leader, visionary, and humanitarian, whose divine presence has truly sanctified this occasion. Swamiji's timeless message of service, compassion, and sustainable living continues to inspire millions across the globe. Today, his words have touched our hearts and enlightened our minds. We are deeply grateful for his gracious blessings. Our sincere thanks to Mr. Anil Kumar Jain, Regional Officer, CBSE Prayagraj, for his insightful words, academic wisdom, and inspiring guidance that have added depth and meaning to this event. My profound gratitude to my mother, Dr. Krishna Gupta, the life force of Maharshi Patanjali Group of Schools, the guiding spirit and visionary whose leadership continues to illuminate our path and sustain our mission. I extend my deep regards to the members of Samiti for their dignified presence and unwavering support. Our heartfelt appreciation goes to the honorable jury members for their discerning judgment and devoted efforts in identifying the most deserving recipients. We also express our admiration for Lokmani Lal and Dayakanti Devi awardees, whose dedication to teaching and service truly embodies the noble spirit of education. A warm thanks to our eminent guests, whose gracious presence has made this celebration memorable. My special appreciation to our principals for their expert coordination and tireless efforts in organizing this grand event. I also extend my gratitude to our dedicated teachers and bright students for their enthusiastic participation, to the technical team for the smooth execution of every detail, and to the media for spreading our message of excellence and sharing our journey of success with the wider world. Finally, a heartfelt thanks to each and every one who has in any way contributed to the success of this memorable celebration. Thank you all. Thank you, sir, for your thoughtful vote of thanks. Your words have perfectly concluded today's event. By the time awardees are coming on the stage, मुझे तब तो आना शुरू कर दें वो लोग। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में हमारे श्री बागड़ोदिया जी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पुश किए रखा कि नहीं आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस एज में भी वो, आप सोचिए, हम लोगों ने निश्चय किया है परमार्थ निकेतन एंड महावीर सेवा सदन आदरणीय बागड़ोदिया जी के नेतृत्व में, जज साहब, ये पूरे देश को दिव्यांगता मुक्त भारत बनाना, दिव्यांगता मुक्त भारत पूरे देश को। और उसमें जगह जगह पर हर महीने अलग अलग जगह पर कितने ही कैंप लग रहे हैं। अगर प्रयागराज में भी या उत्तर प्रदेश में से योगी जी से बात होगी, आनंदीबेन जी से भी बात हो गई है, यहाँ भी कराने होंगे तो फ्री है, इट्स ऑल फ्री। सारी डॉक्टरों की टीम आती है और सारे ऑपरेशन, सारी चीज़ें, सारे लिम्स, सारे उनको फ्री में मिलते हैं। एंड सवेरे अब तो गाड़ी ऐसी बनवा दी है कि सवेरे गाड़ी पहुंची, मेजरमेंट लिया, शाम तक उनको वो रेंगते हुए आए, क्राउल करते हुए आए, लेकिन नाचते हुए वापस जाएं। इतना ज़्यादा उसका सफलता है। और उसके लिए इस उम्र में भी आज यहाँ, कल वहाँ, कभी कहीं हमारे बागड़ोदिया जी लगे हुए। मुझे भी प्लेन में बोले कि अब जगह और ढूंढनी है, पूरे देश में जगह जगह कैंप करने हैं, और अब जगह दूसरे देशों में भी करना हो, वहाँ भी अगर ये प्रॉब्लम है। ये भारत की शक्ति है कि भारत केवल अपने लिए नहीं सोचता और भारतीय अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि पूरे विश्व के लिए सोचता है। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन। और नॉट ओनली दैट, यहाँ जो अपना त्रिवेणी पुष्प में इतना बड़ा परिसर 12 एकड़ में बना है, उसमें जो जगन्नाथपुरी का धाम बना है, क्योंकि रामेश्वर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, अयोध्या धाम है, उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, उसमें आप निर्देशन भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जो जगन्नाथपुरी का पूरा भव्य मंदिर बन रहा है, पूरा का पूरा योगदान हमारे आदरणीय बागड़ोदिया जी का है।
फरवरी में हम लोग इसका उद्घाटन जब करेंगे माघ मेले के समय में, उस समय आप सबको निमंत्रित करेंगे। आप सारे जितने भी स्कूल टीचर्स हैं और स्कूल के सभी, हमारे पूरा परिवार, अब तो फैमिली हो गए, यस, तो अब सब मिल के वहाँ पर सबको आमंत्रित करेंगे। आइए पुनः हम अपने सभी इन शक्तियों का अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों से, जिन्होंने सचमुच अपना जीवन दिया है। और ये एक प्यारा सा पौधा भी लेके आए, जब चित्र होगा तो वो भी दे दिया जाएगा। एकता, संप्रभुता एवं गौरव का प्रतीक है। आप सभी जनों से, विशिष्ट जनों से विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शुभ नामे जा